What is okay, fine. So today, let me introduce myself also. I am Professor Vijay Singh Rathod, and I've been in teaching this computer science subject for last 20 years. And earlier, I was also in Triple IM around 2006 to 2009, and then I again joined back in IIS University in 2000 around 17. So this is my third or fourth year here. So I welcome you all to the research profile. And now onwards, when you take an admission in your PhD, now you are known as research scholars. Okay. So today we'll clear something about PhD, we'll clear something about research, and we'll clear something about guide. I will tell you three things. You can note down also: PhD, then research, and then guide. These three things will be, taking up with you in the upcoming 3 years. First of all, let us talk about PhD. Okay. So PH means philosophy. The full form of the PhD is Doctor of Philosophy. In Doctor of Philosophy, PH stands for philosophy. So what is a philosophy? The philosophy is an idea or ideology. Okay, like the Minal said, she wants to do something in the blockchain. Okay, so to do anything in the blockchain, first of all, you need to study what actually is blockchain, what actually is going on in the field of blockchain, and what are the existing research areas on which the people are working on blockchain. Or any, like if somebody wants to work on cloud computing, then she needs to study something about the cloud computing. If somebody else needs to do on the banking, e-banking or something like that, they need to work something on the e-banking. So the ideology or philosophy means any ideology or any idea which is coming in your mind. Like people have been working very nicely, but when you study the things, you get some idea. This can be done like this also, or these are the limitations, or these are the future scopes, or these are the areas we can work, we can improve the work. So this is your ideology. So that's why it is called philosophy. Fine. And but the next word is D, doctor. So normally what a doctor does, normally अगर मेडिकल डॉक्टर की बात की जाए, तो whenever you go to a doctor, what happens? वो आपको चेकअप करता है. He checks up you, and then he out of his experience, he knows that it can be malaria, it can be cholera, it can be some other disease. So that disease के बारे में. Okay. And then he starts the treatment. And before starting the treatment also, sometimes he tells you for some investigations, like कि आप ये जांच करा लीजिए, वो जांच करा लीजिए. Then you come up with some reports, and out of those reports he makes some idea. Okay, it can be this disease or it can be that disease. And then to rectify that disease, or to improve yourself, or to recover you, he starts some treatment. Okay. Initially he starts some treatment, then something happens, and if you are not satisfied, yeah, you are not recovered, then what he does, he changes the medicines, and he changes the treatment, or he improves the treatment, something like that. He keep on treating you until you are recovered. So that also comes with the PhD also. Whatever philosophy you have come with, whatever ideology you come, you need to first of all investigate that ideology. If you want to do something in the blockchain, so you need to investigate like a doctor. What actually is the blockchain? What is the problems are in the blockchain? What are the issues in the research in the blockchain? Okay, and when you have come to know about all these things, then what you do, you start the treatment. Like in your language, what you can say, एक्सपेरिमेंट. नाउ वी कि भैया ऐसा है, मुझे ये पर्टिकुलर चीज थी, ये मेरा आइडियोलॉजी था, ये मेरा फिलोसफी था. इस फिलोसफी को प्रूव करने के लिए, या इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, या फिर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट्स करूंगा. एंड व्हेन यू स्टार्ट योर एक्सपेरिमेंट्स लाइक अ डॉक्टर आल्सो, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, डॉक्टर इज स्टार्टिंग द मेडिसिन, बट वो कई बार काम नहीं करती है, या कई बार रिएक्शन भी कर जाती है. तो आपके साथ भी ऐसा होगा कि वट एवर ट्रीटमेंट यू आर स्टार्टिंग, वट एवर एक्सपेरिमेंट यू आर स्टार्टिंग, कई बार एक्सपेरिमेंट्स आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे. देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स. देन व्हाट यू डू, यू विल चेंज द एक्सपेरिमेंट्स, यू विल इंप्रूव द एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है ना. आप गाइड से कंसल्ट करते हो, और फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा सा इंप्रूव करते हो या चेंज करते हो. और उन एक्सपेरिमेंट्स को आप तब तक करते रहोगे जब तक कि आपने जो अपना प्रपोज मॉडल दिया है, जो आपने फिलोसफी दी है, वो आपकी इंप्लीमेंट होकर के नहीं आ जाए. और जैसे आपका प्रपोज मॉडल आपका इंप्लीमेंट होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, और उसके आउटकम्स आते हैं, देन you are happy, you are successful, you are done with your research. So that's why we call you as a doctor after completion of your PhD. तो ये जो PhD का फुल फॉर्म है ना, ये एक तरीके से इट्स ऑन माय ओन डेफिनेशन. ये कहीं पे आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, नहीं कहीं नेट में मिलेगा, बट एज पर माय ओन एक्सपीरियंस इन लास्ट 20 years, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, लाइक
PhD. The PH is the philosophy which you are working upon, and D is a like a doctor, you have been working on that particular philosophy, and after the 2 years or 3 years, now you are going to prove that my philosophy was right or wrong. Okay, so this is the normal explanation about the PhD. तो जब आप ये PhD स्टार्ट करोगे ना, और जब भी आप रिसर्च अपनी कमेंट्स करोगे, तो इस चीज को आप ध्यान में लेके चलना कि भाई मुझे कोई ना कोई फिलोसफी लेके आनी है, कोई ना कोई आइडियोलॉजी लेके आनी है, एंड दैट आइडियोलॉजी शुड बी बेस्ड ऑन सम एग्जिस्टिंग आउटकम्स ऑफ द अदर रिसर्चर्स. और उस आइडियोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए या प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करने पड़ेंगे, बाद में उनको एक्सपेरिमेंट्स को इम्प्लीमेंट करके कुछ ना कुछ करके दिखाना भी पड़ेगा. तो ये चीज आप लोग आज फर्स्ट डे. सेकंड थिंग, हम लोग जो बात करते हैं ठीक है, तो you are known as research scholars. Some faculty will become research supervisor, and when somebody asks you what you are doing, you tell I am doing research. So what this research is actually, ठीक है ना. तो अब देखिए थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं कि कोई स्टार्ट करते हैं ब्लॉकचेन से. फाइन, ब्लॉकचेन से करना, ब्लॉकचेन से करिए, शायद मोनिका का उसका क्लाउड कंप्यूटिंग हो, अनुश्री का उसका शायद कुछ अलग. हेलो यस सर, आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है बार बार. ओके, सो लेट मी नाउ एम आई ऑडिबल. मेरा डेटा माइनिंग था. आपका डेटा माइनिंग है, किसका? मोनिका का. यस सर मोनिका डेटा माइनिंग पे कर रही है. मीनल आपके जो है वो शायद ब्लॉकचेन पे कर रही है. ठीक है, अनुश्री आपका क्या था? हाइपोथेटिकल प्रोटीन पे वर्क कर रही हूं सर अभी. हाइपोथेटिकल प्रोटीन, फाइन. अब देखिए आप तीनों को क्या करना है, जो भी आपका कंसर्न एरिया है, उस कंसर्न एरिया में सबसे पहले काम हो जाएगा आपका रीड. रिसर्च में देयर आर 4 R's: रीड, रिव्यू, रेक्टिफाई एंड रीराइट. फर्स्ट आर क्या है? रीड. मिनल जाएगी, वो आपके ब्लॉकचेन से रिलेटेड सब कुछ रीड कर लेंगी. मोनिका जाएंगी, वो डेटा माइनिंग से रिलेटेड सब कुछ रीड कर लेंगी. अनुश्री जाएंगी, वो आपका जो प्रोटीन का जो भी है उसका आप रीड करो. रीड का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कम टू नो कि भाई व्हाट एक्चुअली इज द फील्ड इन विच आई एम गोइंग टू वर्क. उस फील्ड के बारे में पता तो हो कम से कम. डेटा माइनिंग क्या होती है, डेटा माइनिंग की टेक्निक्स क्या क्या होती है, डेटा माइनिंग की एल्गोरिथम्स कौन कौन सी है, ये ब्लॉकचेन होता क्या है, ब्लॉकचेन का इन्वेंशन कैसे हुआ, ब्लॉकचेन से क्या क्या काम हो सकते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस इन द ब्लॉकचेन, व्हाट आर द इश्यूज इन द ब्लॉकचेन, और ये आप जो प्रोटीन का बोल रहे हो व्हाटएवर. ठीक है ना. तो इसमें आपको करना पड़ेगा रीड. अब रीड क्या करें? यू नीड टू रीड. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं करना, हम गूगल पे गए और इनका मीनिंग रीड किया कि भैया ये है क्या. आपको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एज ए रिसर्च स्कॉलर, एज ए PhD स्टूडेंट, अब आपको अपने इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में ढंग से जानकारी होनी चाहिए. अगर डेटा माइनिंग पे आप PhD कर रहे हो, तो डेटा माइनिंग का व्हाट से लेकर के उसका जो भी हाउ है वो सारा आपको पता होना चाहिए. ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि साहब मेरा तो टॉपिक तो ये था, तो मैं डेटा माइनिंग में इतना ही कर रही थी, उतना मैं जानती, ऐसा कुछ भी नहीं. एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा माइनिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लॉकचेन और जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रोटीन चेन, वो सब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले रीड करना पड़ेगा. तो रीड कैसे करें? आप ऑनलाइन रीड कर सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा कुछ जर्नल्स आते हैं. ठीक है, उन जर्नल्स के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं, आपके अलावा जो बाकी रिसर्चर्स हैं या जो आपके पहले रिसर्चर्स हैं, या डेटा माइनिंग का तो 20 साल से नाम चला, तो 20 साल में लोगों ने क्या क्या काम किया डेटा माइनिंग के अंदर, वो सब हमको रीड करना पड़ेगा. इसलिए 8-10 साल में ब्लॉकचेन के क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ, वो सब हमको रीड करना पड़ेगा. तो फर्स्ट स्टेप पर रीड. इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, नहीं आपको कोई नई इन्वेंशन करनी है, ना कोई आपको नई एल्गोरिथम लिखनी है, ना कोई आपको नई मैकेनिज्म लिखनी है. यू जस्ट नीड टू रीड द एग्जिस्टिंग सिनेरियो ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड इन विच यू आर गोइंग टू परस्यू योर रिसर्च. जब आप रीड करोगे ना, देन यू विल कम टू नो कि जो आपको पता था डेटा माइनिंग के बारे में या ब्लॉकचेन के बारे में या किसी और चीज के बारे में, शायद उससे कहीं ज्यादा इन सब्जेक्ट्स की जो डेप्थ है. ठीक है, अब आप क्या करते हो कि भाई उस रीड करने के बाद में जब आपको डिफरेंट एक बेसिकली एक आप भी ध्यान रखना इस चीज का कि आपको जब रीड करना चालू कर दोगे तो आप ये भी रीड करना कि व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज इन द पर्टिकुलर फील्ड. तो इश्यूज का मतलब कि ब्लॉकचेन में लोग बाग रिसर्च किन किन एरियाज में कर रहे हैं, या डेटा माइनिंग में लोग बाग रिसर्च किन किन एरियाज में कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं. ठीक है, उनका रीड करना है, उनका स्टडी करना है. ठीक है, तो व्हेन यू डू स्टडी ऑफ ऑल दीज एग्जिस्टिंग लिटरेचर, इनको बोलते हैं हम लोग लिटरेचर. इसमें आपके जर्नल्स भी आ गए, आर्टिकल्स भी आ गए, बुक्स भी आ गई, है ना, आपके एग्जिस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स भी आ गए, सब कुछ आ गए. ये जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, जब इसको आप रीड करते हो तो क्या होता है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक रिव्यू चल रहा होता है. रिव्यू इज द सेकंड प्रोसेस या सेकंड पार्ट ऑफ द रिसर्च. रिव्यू का मतलब क्या है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पिक्चर बन रही होती है कि शायद मैं जिस प्रॉब्लम के या जिस इश्यू
इश्यू के बारे में बात करें, उस इश्यू के ऊपर ये 4 लोग जो हैं काम कर रहे हैं। एक शायद किसी यूएस के लेबोरेटरी में काम हो रहा है, एक शायद यूके में कहीं काम हो रहा है, एक शायद ऑस्ट्रेलिया में कहीं काम हो रहा है, और इंडिया के अंदर भी कुछ आईआईटीज में काम हो रहा है, कुछ यूनिवर्सिटीज में काम हो रहा है, और कुछ रिसर्चर्स भी काम कर रहे हैं। तो वो सब जो काम कर रहे हैं उसका एक रिव्यू आपके दिमाग में चल रहा होता है। उस रिव्यू के बाद में एक पिक्चर बनती है आपके दिमाग में। वो पिक्चर आपसे बोलती है कि जो भी आप करना चाह रहे हो उसको सोल्व करने के शायद ये 3-4 तरीके हैं, ठीक है। और इन 3-4 तरीकों में से शायद इन 1 या 2 तरीकों के ऊपर मैं भी अपना काम करूं। जरूरी नहीं कि आप सारा का सारा प्रॉब्लम सोल्व कर दोगे। सारी की सारी प्रॉब्लम सोल्व करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। एक कम्युनिटी है रिसर्च पे जो कि इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम कर रही है। जैसे आपने ब्लॉकचेन लिया ना, तो ब्लॉकचेन का इंप्लीमेंटेशन कोई मिनल की या विजय सिद्धि की या किसी आईआईएस यूनिवर्सिटी के अकेले के बस की बात नहीं है। उस ब्लॉकचेन में तो हजारों काम हो रहे हैं। उस हजारों काम में से आप तो वो 3 या 4 काम पकड़ो जो कि आपके समझ में आ रहे हैं, जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे हैं। कई बार ज्यादा अपन हाई फाई पढ़ लेते हैं ना, तो भी काम का नहीं है, और ज्यादा लोअर लेवल का ले लिया तो फिर कोई जस्टिफाई नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो आप तो अपने लेवल की चीज को पकड़ के उसको रिव्यू करो कि व्हाट आर द लिमिटेशंस इन द एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड हाउ दोज लिमिटेशंस कैन बी ओवरकम। हो सकता है कि लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए 5-6 तरीके हो, ठीक है। उन 5-6 तरीकों में से आप वो 1 या 2 तरीके पकड़ो जो कि आप अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से। जैसे मान लो मोनिका ने एमएससी आईटी किया है, तो एमएससी आईटी में शायद आपने कुछ लिमिटेड पेपर्स ही पढ़े हैं, ठीक है। आपने पूरी कंप्यूटर साइंस को डेप्थ में नहीं पढ़ा है। तो फिर आपने जो लिमिटेड पेपर्स पढ़े थे अपने, या जो आपकी लिमिटेड नॉलेज है, उसके हिसाब से ये जो 4-5 आपको सॉल्यूशंस दिख रहे हैं, उनमें से कौन से सॉल्यूशन पे आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो आपको थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा, और उसमें आपकी मदद करेंगे आपके जो रिसर्च सुपरवाइजर है, वो आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और आपके जो समय समय पे जो आपके हम लोग रिव्यूज वगैरह कराते हैं वो आपकी मदद करेंगे, ठीक है ना। आपके कई प्रेजेंटेशन वगैरह होंगे वो भी आपकी मदद करेंगे। तो देन आफ्टर सम टाइम यू विल कम अप विद सम पर्टिकुलर रिसर्च प्लान प्रपोजल, आरपीपी बोलते हैं उसको अपन लोग। तो वो रिसर्च प्लान प्रपोजल विल टेल कि व्हाट एक्चुअली यू आर गोइंग टू डू, ठीक है। और जो भी आपको करना है उसको करने के लिए आपने अब तक क्या स्टडी करी है, आगे की आपकी प्लानिंग क्या है, और आने वाले 2 से 3 साल में आप अपने काम को किस तरीके से आगे बढ़ाओगे। तो वो रिसर्च प्लान प्रपोजल आएगा इस रिव्यू के बाद में। फर्स्ट स्टेप था रीड, सेकंड स्टेप था रिव्यू। अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब हो गया डिजाइनिंग करना, डेवलपमेंट करना, क्रिएट करना, प्रिपेयर करना, एनीथिंग। कि जो भी पर्टिकुलर आपने इशू लिया था, ठीक है, यानी ट्रीटमेंट्स को चालू कर दिया अब आपने, ठीक है, डॉक्टर की तरह। जो भी आपने इशू लिया था, जो प्रॉब्लम्स आपने ली थी, नाउ यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोस पर्टिकुलर थिंग्स। तो जब उन पे आप काम करना चालू करते हो तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ सेटअप होता है, ठीक है ना। उसमें कुछ आप स्टार्टिंग में कुछ चीजें आपको शायद सक्सेसफुली रन हो जाएगी, कुछ रन नहीं हो पाएंगी, कुछ चेंजेस भी आपको करने पड़ जाएंगे। तो ये कीप ऑन चेंजिंग ऑल द थिंग्स। दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग जो भी एल्गोरिथम थी, मैकेनिज्म थी, टेक्निक्स थी या मॉडल्स थे जिनमें कि आप कुछ इंप्रूवमेंट करना चाह रहे थे, उस इंप्रूवमेंट को हमने क्या बोल दिया? रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और इन द फॉर्म ऑफ सिमुलेशन, इन द फॉर्म ऑफ आप चाहो तो कोई शायद एक्चुअल आप रियल टाइम का कोई प्रोजेक्ट भी डेवलप कर सकते हो। तो आपने चाहे कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया है, चाहे आपने कोई सिमुलेशन किया है, चाहे आपने कोई सर्वे किया है, तो वो दीज ऑल आर द डिफरेंट डिफरेंट ways of doing the rectification. So the third R is the rectification. और जब वो rectification आपका हो जाएगा, then comes the fourth R, that is called rewrite. Rewrite means हमने रीड किया, हमने रिव्यू किया, हमने कुछ रेक्टिफाई किया। इन तीनों चीजों को आप एक थीसिस की फॉर्म के अंदर लिखो। और वो थीसिस लगभग ये मान लीजिए कि आपकी 150 to 250 पेज के आसपास की एक थीसिस हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं रीराइट करना। जिस दिन आपने वो रीराइट कर लिया, यानी वो 150-250 पेज की थीसिस आपने लिख दी, उस दिन आप ये मान के चलते हो कि मेरी जो फिलोसफी थी, मेरी जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी में मैंने 2.5 साल 3 साल तक काम किया, मैंने ये बुक ला करके आपके सामने लिख दी। उसको हम बोलते हैं थीसिस, या बोलते हैं रिसर्च थीसिस, या बोलते हैं पीएचडी थीसिस। वो जब पीएचडी थीसिस आप लिख दोगे, उसके बाद में आप ये मानते हो कि आपका काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। फिर उस थीसिस को क्या होता है कि जब हम यूनिवर्सिटी कहीं पे एज ए जो ऑलरेडी इस फील्ड के एक्सपर्ट है, इस फील्ड में आप काम कर रहे हो, उन एक्सपर्ट्स को थीसिस भेजते हैं कि भाई ये बच्ची बोल तो रही है कि इसने ये काम कर लिया, लेकिन क्या वास्तव में इसका काम जस्टिफाइबल है क्या वास्तव में इसको रिसर्च बोल सकते हैं क्या हम लोग, ठीक है। तो अगर इफ दे अप्रूव योर थीसिस, देन यू विल गेट द डिग्री ऑफ द पीएचडी। तो दिस इज द होल स्टोरी। अभी जो शुरू के 6 महीने हैं उसमें शायद आप रीड 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 यही काम करने वाले। अगले 6 महीने आएंगे उसमें आपका रिव्यू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर शायद आप रेक्टिफाई यानी कि कुछ ना कुछ डिजाइन डेवलपमेंट या कुछ क्रिएट या कुछ ना कुछ आप काम करना चालू कर दोगे। और जो लास्ट के 6 महीने ऐसा कुछ होगा उसमें आप चाहो तो रीराइट वाला काम भी चालू अपना कर सकते हो। तो दिस इज हाउ योर रिसर्च प्रोसीड्स इन ऑल दीज 4 phases: रीड, रिव्यू, रेक्टिफाई एंड रीराइट। तो यहाँ तक कुछ समझ में आया आप लोगों को? क्लियर होगा कुछ व्हाट एक्चुअली यू आर गोइंग टू डू इन योर रिसर्च? Any confusion so far? You want to ask something? Yes or no? You don't want to ask, you can say no. No confusions. No, sir, it's
Okay, we got it. No, sir. All clear. ऑल क्लियर। अभी स्टार्टिंग में सब क्लियर ही होता है, लेकिन जब हम विल स्टार्ट वर्किंग बाय आवर कई चीजें और क्लियर हो जाएंगी और मजा आएगा। ठीक है ना? आपको पता है जो Yes, सेकंड, आपको पता है इसको रिसर्च क्यों बोलते हैं? क्या होता है कि रीड का मतलब क्या हो गया? योर गाइड विल टेल यू गो एंड रीड समथिंग, व्हेन यू गो एंड रीड समथिंग, और तो कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप गाइड के पास आओगे, सर वो तो समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या लिखा हुआ था वहाँ, तो ये था वो था, तो फिर इसमें कुछ आप गाइड से हेल्प नहीं मिल रही है, गाइड कुछ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, गाइड को समझाते नहीं है, हम अकेले पड़ गए, हमसे काम नहीं हो रहा है, ये है वो है। कई लोग बोलेंगे आपको जो रिसर्च ढंग से नहीं कर पा रहे या जिनको प्रॉब्लम आ रही। ठीक है, और शायद आप में से भी कुछ लोग आगे जाकर के 1 साल बाद में इस चीज को थोड़ा सा रियलाइज करोगे। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू हु इज योर गाइड। ठीक है, अगर आपको आज ये बात क्लियर हो जाएगी, आज आपकी फर्स्ट क्लास है ना रिसर्च की, अगर आपको आज ये बात क्लियर हो गई कि जो गाइड है वो क्या होता है और गाइड का रोल क्या होता है, तो शायद आपको गाइड का जो यूज होगा ना वो आप बड़ा इफेक्टिवली कर सकते हो। सो व्हाट इज अ गाइड? गाइड इज नॉट द पर्सन हु इज असिस्टिंग इन योर पीएचडी एज अ रिसर्च सुपरवाइजर। गाइड इज अ सिस्टम। गाइड एक पूरा पूरा सिस्टम है जो कि आपकी पीएचडी के दौरान आपको असिस्ट करता है, आपकी हेल्प करता है। उस सिस्टम में 7 चीजें आती है, देयर आर 7 थिंग्स। ये भी मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, इट इज ऑल आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस ओनली, जो 20 साल में हमने सीखा है, ये कहीं बुक्स में आपको शायद नहीं मिले। तो द फर्स्ट गाइड, यू हैव 7 गाइड्स इन योर रिसर्च, यू नो, आपके साथ टोटल 7 गाइड होते हैं आपके रिसर्च के अंदर। द फर्स्ट गाइड इज योर ओन नॉलेज। हमने भी क्या बात की थी, मोनिका ने एमएससी आईटी की है, मिनल ने हो सकता है कि शायद एमसीए किया हो, अनुश्री ने हो सकता है कि एमसीए किया हो, या किसी और ने एमटेक किया हो। ठीक है ना? तो आपका जो ओन नॉलेज है कंप्यूटर साइंस का या उस पर्टिकुलर फील्ड में, योर ओन नॉलेज इज ऑल्सो योर गाइड। अगर आपको सब कुछ ऑलरेडी पता है या आपकी कुछ बातें क्लियर है, आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको कहीं कोई पढ़ने में दिक्कत नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कि आपका जो पहला गाइड है वो काम कर रहा है। योर ओन नॉलेज इज योर फर्स्ट गाइड। देन सेकंड गाइड इज बुक्स। हमने क्या कहा था, रिसर्च का मतलब रीड। तो रीड क्या करोगे? रीड करेंगे, हम बुक्स को रीड करेंगे, हम जर्नल्स को रीड करेंगे, हम आर्टिकल्स को रीड करेंगे, हम नेट पे जाएंगे, गूगल पे, वहां पे कुछ रीड करेंगे, तो वो भी आपके गाइड है। कई बार नेट पे आपको जो भी मटेरियल मिलता है, ठीक है ना, या बुक्स में जो मटेरियल मिलता है या जर्नल्स में जो मटेरियल मिलता है, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि आपकी रिसर्च आगे कैसे बढ़ेगी। कई बार मान लीजिए कि मान लो कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो जब कंसेप्ट समझ में नहीं आया, कोई पर्टिकुलर इश्यू आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? आपको अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए चाहिए बुक्स। ठीक है, बुक्स मान लीजिए, या आप लिटरेचर मान लीजिए, या आप इसको जर्नल्स बोल दीजिए, आर्टिकल्स बोल दीजिए। यू नीड ऑल दीज थिंग्स फॉर एनहांसमेंट इन योर पर्टिकुलर नॉलेज। अदर देन द नॉलेज, द बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, ऑल द लिटरेचर, इनको अपन क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट लिटरेचर। तो लिटरेचर इज योर सेकेंड गाइड। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि हमको गाइड की हेल्प नहीं मिल रही, तो इसका मतलब शायद आपको अपनी नॉलेज के ऊपर विश्वास नहीं है, या शायद आपने लिटरेचर रिव्यू ढंग से नहीं किया हुआ है। ठीक है, तीसरा गाइड जो होता है वो गाइड होता है आपका द वर्कशॉप्स यू अटेंड। कई बार क्या होता है कि मान लो कि आपको एसपीएसएस पे काम करना है, या आपको मैटलैब पे काम करना है, या आपको कोई सिमुलेटर पे काम करना है। ठीक है, कोई नेटवर्किंग में काम करेगा, उसको NS2 NS3 या सिमुलेटर्स पे काम करना होता है। इफ समबडी वांट्स टू वर्क ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो फॉर द सिमुलेशन ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग यू नीड टू नो द क्लाउड सिमुलेटर एंड ऑल these टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड ऑल these थिंग्स। ठीक है ना? कई बार आपको पाइथन पे काम करना पड़ जाएगा शायद, या आपको एडवांस जावा के लिए मान लो कुछ आपको अलग से टूल्स चाहिए होंगे, तो वो सब मान लीजिए आपको नहीं आते हैं, योर ओन नॉलेज इज नॉट प्रॉपर इन दोज पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? देन यू नीड टू अटेंड द वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और क्लासेस। ये जो कोर्स वर्क की बात कर रहे हैं हम लोग, ये कोर्स वर्क भी क्या है? ये तीसरा गाइड है आपका। जिसने कोर्स वर्क की क्लासेस अटेंड नहीं करी, वर्कशॉप्स अटेंड नहीं करी, ठीक है ना, या फिर जिसने थोड़ा और उसके आगे चलते हैं अपन लोग की वर्कशॉप और क्लासेस तो आपकी कॉलेज में हो जाएगी जैसे आप रिसर्च कर रहे हो, लेकिन तीसरी चीज आती है कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स, जो कि आप क्या करोगे आउटसाइड ऑफ योर यूनिवर्सिटी, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस हो रही है, किसी दूसरे शहर में कॉन्फ्रेंस हो रही है, या किसी दूसरे देश में कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी आपको अटेंड करनी पड़ेगी। तो ये तीसरा गाइड है आपका, इनको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड क्लासेस। ये सब मिला के क्या है, इनको बोल दिया अपन ने कॉन्फ्रेंसेस। दिस इज योर थर्ड गाइड। तो अगर आप बोलते हो कि भाई मेरे को 1 साल काम करते हुए हो गया, या 2 साल काम करते हो गया, 3 साल काम करते हो गया, मेरी पीएचडी आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो इसका मतलब क्या आपने पिछले 2-3 साल में कुछ कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स या वर्कशॉप वगैरह अटेंड किए? क्या पूछना अपने आप। अगर आपका जवाब आता है नो, तो इसका मतलब ठीक है आपका गाइड सही नहीं। ठीक है ना? तो तीसरा गाइड कौन होता है? कॉन्फ्रेंसेस होती है। देन फोर्थ गाइड इज योर एक्चुअल गाइड। जैसे कि मान लीजिए कि
शायद मोनिका मैम को कोई रिसर्च सुपरवाइजर अलॉट होंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी से, क्या कहते हैं IIS यूनिवर्सिटी से। मोनिका जी आपके सुपरवाइजर कौन है जो आपको अलॉट हुए हैं? आपके गाइड को गाइड दो होंगे ना? मोनिका शर्मा, आर यू देयर? मोनिका आप हो गया वहां पे? ओके मिनल आप बताइए, मिनल हु इज योर गाइड? हेलो हेलो सर अमिता मैम, सर अमिता आपकी शर्मा आवाज मैम। ही नहीं आ रही थी। ओके ओके, तो मिनल के गाइड तो अमिता मैडम है। मोनिका आपके गाइड कौन है? यस सर। सर मेरी गाइड तो प्रियंका वर्मा मैम है और ओके को गाइड गीतिका व्यास मैम है। फाइन फाइन। आप और अनुश्री जी के? उस दिन थे आप जब आपने मुझे डेटा माइनिंग के बारे में समझाया भी था। आई नो आई रिमेम्बर। अनुश्री व्हाट अबाउट यू, हु इज योर गाइड? अनुश्री, अनुश्री आर यू देयर? हेलो हाँ बताइए, आपके गाइड कौन अलॉट हुई आपको? द गाइड इज नेहा मैम नेहा मैम, ठीक है ना? एंड को मैंने गाइड आपको इज अमिता मैम। वेरी फाइन। मैंने आपसे ये नाम क्यों पूछे पता है आपको? मैंने आपसे नाम इसलिए पूछे कि जब आप अपनी रिसर्च में आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, तो ये भी आपकी हर कदम पे मदद करेंगे। बट इनका इनका जो क्या कहते हैं नंबर, कौन से नंबर पे आ रहा है? चौथे नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे गाइड है आपकी नॉलेज, सेकंड नंबर पे गाइड है आपका लिटरेचर, जिसको आप यस यस यू वांट टू स्पीक समथिंग मिनल? ओके फाइन। So first is your knowledge, second is your literature, third is the conferences, seminars and workshop which you have been attending. You will going to attend in your this research time, and the fourth one is your actual guide जो कि आपको यूनिवर्सिटी से अलॉट हुए हैं। तो ये तो हो गया आपके 4 गाइड, ठीक है। अब पांचवा गाइड की बात करता हूँ। पांचवा गाइड है आपका, यू विल सरप्राइज टू नो कि ये पांचवा गाइड जो है ना, इसको गाइड क्यों बोल रहे हैं हम लोग, ये है आपकी फैमिली। आपकी फैमिली, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो PhD में हमको कितना सहयोग कर पा रहे हैं। क्या हमको जो घर पे, जैसे आप में से कई लोग वर्किंग क्लास भी होंगे, है ना, कई आप में से जॉब कर रहे हैं, या मान लो घर पे और भी उनको घर में बच्चे भी हैं, या मान लो कि घर में और कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो फैमिली मेंबर्स अगर आपको कोऑपरेट करते हैं और अच्छा कोऑपरेट करते हैं, या जो आपको टाइम रिसर्च को बढ़ाने के लिए चाहिए, वो घर पे अगर आपको अच्छा माहौल मिल रहा है, तो आपकी रिसर्च ढंग से आगे बढ़ पाएगी। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि यू वांट टू डू मेनी थिंग्स बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस इन योर फैमिली, हम अपने काम को ढंग से आगे नहीं बढ़ा पाते। तो फैमिली इज ऑल्सो योर गाइड। तो अगर आपको लगता है कि आपकी रिसर्च आगे नहीं बढ़ रही, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना है कि वो भी आपको आपकी रिसर्च के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पांचवा गाइड, फैमिली। छठा गाइड है आपके कलीग्स। कलीग्स का मतलब, अगर मोनिका रिसर्च कर रही है तो मिनल भी मोनिका की गाइड है। ये अनुश्री जो है ना, अनुश्री भी मोनिका की गाइड है। और जो लोग आपसे पहले रिसर्च करते आ रहे हैं पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में, वो भी आपके गाइड है। मतलब कि वेन एवर यू आर, अभी आज पता है अभी क्लास हो रही है आपकी, देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर इस क्लास में खाली मोनिका अकेली आती तो शायद उसका एक क्लास नहीं हो पाती, लेकिन चूंकि 4 लोग और हैं या 5 लोग और आ जाएंगे बाद में आगे जाकर के, तो फिर ये क्लास हो पा रही है। तो यानी कि आप होता कई बार देखा होगा आपने, सिर्फ किसी बस में बैठते अपन लोग तो, या कहीं भी बैठते तो क्या बोलते, बस भरी नहीं है अभी तक, चलेगी नहीं। यानी कि मैं तो बस में बैठ गया, मैंने टिकट ले भी लिया, तो बस चलाओ, लेकिन नहीं, जब तक बस भरेगी नहीं बस चलेगी नहीं आगे। तो सिमिलरली जो आपके कलीग्स होते हैं ना, वो कलीग्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कलीग्स कैसा काम कर रहे हैं, आपसे अच्छा काम कर रहे हैं या आपसे आपसे खराब काम कर रहे हैं या आपके बराबर काम कर रहे हैं, और उनसे आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है, वो कलीग्स भी आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से आपकी रिसर्च के दौरान एक गाइड का रोल अदा करेंगे। आपके कलीग्स या आपके फ्रेंड्स बोल लीजिए, आप कलीग्स बोल लीजिए, फ्रेंड्स बोल लीजिए, या फिर को स्कॉलर्स, ठीक है। दोस को स्कॉलर्स आर आल्सो योर गाइड। तो ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपकी रिसर्च स्टार्ट हो रही है, तो आपको इन सबको सम्मान देना है। इसमें फैमिली का रोल भी बता दिया मैंने आपको, और आपके कलीग्स का रोल भी बता दिया, आपके को स्कॉलर्स का रोल भी बता दिया, ठीक है ना। और जो सातवें गाइड होते हैं, सातवें एंड लास्ट, अच्छा देखिए, मैं भी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपके गाइड का कलीग हूँ, जो कि चाहे आप नेहा मैडम की बात कर लीजिए, अमिता मैडम की बात कर लीजिए, या आप जो भी प्रियंका मैडम की बात कर लीजिए, आई एम ऑल्सो कलीग ऑफ योर रजिस्टर्ड गाइड, ठीक है ना। तो आज मैं अगर आपको कुछ बता रहा हूँ रिसर्च के बारे में हेल्प करने के लिए, तो मैं आपका गाइड नहीं हुआ क्या? तो वी आर ऑल्सो योर गाइड, ठीक है ना। एंड यू कैन से एग्जामिनर्स, who will examine your research progress, who will examine your research synopsis, who will examine your research thesis, they are also guide। क्यों? क्योंकि जब आपको लगेगा कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है और उस काम को लिख करके आपने एक प्रपोजल तैयार किया, यस माय वर्क इज डन, होता है कई बार ये कि माय वर्क इज डन, नाउ आई वांट टू डू एनीथिंग, और फिर आपका होता है प्रेजेंटेशन, वाइवा होता है। वाइवा में जब आप आते हो ना, तो वहाँ एग्जामिनर्स आते हैं, और एग्जामिनर्स का जो थोड़ा
वो परव्यू होता है ना, कई बार वो क्या होता है कि जो आपने और आपके गाइड ने मिलकर जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है, हो सकता है कि उस डॉक्यूमेंट में कुछ और फाइन ट्यूनिंग चाहिए हो, तो एग्जामिनर्स जो आते हैं वो जब आपको सजेशंस देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसमें आप देखो ऐसे इंप्रूव कर सकते हो, आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हो, या इसमें ये कमियां इनको दूर कर लीजिए, तो उनसे भी आपकी रिसर्च क्या होती है, इंप्रूव। तो सिंस दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर रिसर्च, सो दे आर ऑल्सो योर गाइड। तो वो एग्जामिनर्स जो आते हैं एवेल्यूएट जो करने आते हैं आपकी थीसिस को, वो लोग भी आपके गाइड है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गाइड इज ए सिस्टम, गाइड इज नॉट अ पर्सन। जिस पर्सन को आप गाइड मान रहे हो चौथे नंबर पे आता है वो, तो ठीक है ना। उसके अलावा टोटल 6 चीजें और है जो कि आपके गाइड के रूप में काम करेगी। एक बार वापस समराइज करता हूं मैं। योर फर्स्ट गाइड इज योर ओन नॉलेज, सेकंड गाइड इज योर लिटरेचर विच यू रिव्यू और विच यू स्टडी, योर थर्ड गाइड इज द कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर दिस क्लासेस विच यू अटेंड, वो आपकी थर्ड गाइड है। एंड योर फोर्थ गाइड इज योर एक्चुअल गाइड, जो कि आपको अलॉट किए गए हैं आपके एडमिशन के दौरान। देन योर फैमिली इज योर गाइड, योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स और को स्कॉलर्स, दे आर ऑल्सो योर गाइड। ठीक है, वी आर ऑल्सो योर गाइड्स। चाहे कि हमारा नाम आपकी किसी में नहीं आएगा, लेकिन हम भी आपके गाइड है। आज आपको गाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बैठ करके? अभी अपन 1 घंटा आपसे बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं आपको गाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा हूँ? ठीक है ना, तो वी आर ऑल्सो योर गाइड। इसी की तरह शायद मेरी तरह बाकी टीचर्स भी आएंगे जो आपकी क्लासेस लेंगे, ठीक है ना, कई टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी आएंगे जो आपकी क्लासेस लेंगे, वो सब आपके गाइड है इसके अंदर, ठीक है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर एग्जामिनर्स, ठीक है। तो अब अगर आज के बाद में आपसे कोई पूछता है कि आपका गाइड कौन है, तो खाली आप चौथे नंबर वाले का नाम नहीं बोलोगे, आप उस चौथे के पहले 3 है, चौथे के बाद में 3 है, ठीक है। और ये पूरा पूरा एक सिस्टम है। तो इस गाइड सिस्टम को अगर आपने ढंग से अडॉप्ट कर लिया और उसको सिंसियरली मान लिया, तो आपकी रिसर्च कहीं नहीं रुकेगी। पता है, कोई भी आदमी, आप यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर ऐसे थोड़ी बन जाएंगे अपन। डॉक्टर बनने के लिए खुद को भी नॉलेज होना चाहिए, खुद का पेशेंट भी होना चाहिए, फैमिली के अंदर भी एनवायरमेंट होना चाहिए, आपके जो आपकी जो नॉलेज है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, आपको अटेंड करनी पड़ेगी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, ट्रेनिंग अटेंड करने पड़ेंगे, वर्कशॉप देखनी पड़ेगी। ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर स्टार्टिंग में क्लियर हो गई तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज हम कई बार गलती क्या करते हैं, और कई जो आप में से शायद पता नहीं, आई डोंट नो कि व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड, कई बार हमारे दिमाग में भी चल रहा होता है कि भाई हमको तो जो गाइड मिला है ना, वही हमसे सारा काम कराएगा। वो हमको बुलाएगा, वो बुला के बोलेगा हाँ बेटा बताओ क्या चाहिए, बोले मैडम मेरे को ये चाहिए, बोले ये ले बेटा फास्ट ले जा, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको सिंपली एक मैं बता दूं रोल ऑफ गाइड क्या होता है। जैसे कि आपको चाय बनानी है, ठीक है, तो आपको चाय बनानी नहीं आती, तो आप गए गाइड के पास। जैसे आपकी मम्मी गाइड है चाय बनाने के अंदर, आपकी मम्मी चाय कैसे बनाती, मम्मी ने बता दो ऐसा चाय बनाने के लिए आपको पानी चाहिए, ये चाहिए, वो सामान चाहिए, इस पे करके बना लो। लेकिन वो जब तक आप वो चाय खुद बना के नहीं देखोगे, ठीक है ना, वो खुद बना करके अपने हाथ से तैयार नहीं करोगे, तब तक वो चाय आपके हाथ से बनी हुई नहीं मानी जाएगी। अब चलो मान लो आपने अपने हाथ से चाय बनाई और बना करके आप मम्मी के पास लेके जाते हो, तो मम्मी उस चाय को टेस्ट करती है और टेस्ट करके बताती है अरे बेटा तो चीनी डालना तो भूल गई इसके अंदर, या तो अगर अदरक डाल देती तो चाय और इम्प्रूव हो जाती, या तो अगर इलायची डाल देगी तो चाय और अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा ही रोल आपके गाइड का होता है आपकी चीज के दौरान। जब आप अपना काम करते हो तो इनिशियली जैसे हम आपको बता रहे हैं ना, वो गाइड आपको बताएंगे इनिशियली कि भाई ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन परस्यू योर रिसर्च, ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डू योर वर्क। बट जब भी आप अपना कच्चा पक्का काम कुछ भी करोगे, लाके गाइड को दिखाओगे, तो वो जिस तरह मम्मी ने आपको चाय टेस्ट करके बताएंगे ना, वो आपको आपका काम टेस्ट करके बताएगा कि हाँ भाई ठीक है, आपके काम में ये कमी है या ये अच्छा है, या इसको ऐसे इंप्रूव कर लो, या इसको ऐसे आगे बढ़ा लो। लेकिन गाइड आपको कभी भी खुद चाय बना के नहीं देगा, ये ध्यान रखना। और हम लोग हमारी रिसर्च में कई बार यही सोचते रहते हैं कि शायद गाइड कुछ करके देगा, गाइड टॉपिक देगा, गाइड हमको ये बताएगा, गाइड हमको समझाएगा काम कैसे करना है, ठीक है। और साहब मेरे को तो 1 साल हो गया गाइड ने फोन ही नहीं किया, तो मैं क्या करती फिर। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमने पिछले 5-10 साल में देखे। लोग वहाँ घर जाके बैठ जाते हैं, उनको लगता है कि गाइड जो है वो फोन करेगा, वो हमको बुलाएगा और फिर हमारा काम चालू कराएगा, पता नहीं सारा काम गाइड करेगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आप, और अगर आपको लगता भी है कि गाइड सब कुछ करेगा तो ठीक है, गाइड के जो 7 बताए मैंने आपको, 7 जो यूनिट्स गाइड के अलग अलग है, तो आप आपकी नॉलेज, आपका लिटरेचर, आपका कॉन्फ्रेंसेज, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके एग्जामिनर्स, उनके साथ में रहो तो आपकी हेल्प पक्का करेंगे। लेकिन आपके घर पे साथों नहीं आएंगे हेल्प करने, आपको इन साथों के पास जाना पड़ेगा। तो इफ यू आर विलिंग टू डू ऑल दिस थिंग्स, योर रिसर्च विल बी वेरी सिंपल। और आपको पता है खाली पीएचडी का नाम बड़ा है, बाकी अगर आप इस पीएचडी को सीरियसली करोगे, सिंसियरली करोगे, और अगले आने वाले 2 साल में अपना मन से कंट्रीब्यूट करोगे ना, तो यू विल कम अप विथ योर पर्टिकुलर थीसिस ऑफ 200 पेजेस। इजीली आ जाओगे आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। लेकिन जितना आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे उतना फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली। फाइन, so with that, let me conclude again. Today we have discussed 3 main things. First is the meaning of the PhD, second is actual meaning of the research, and third one is the meaning of the guide.
तो ये 3 चीज मैंने आपको भी टेक्निकल कुछ नहीं बताया आप लोगों को कि टेक्निकली कैसे होगा क्या होगा, मैंने खाली आपको थ्योरेटिकली बताया है कि इन 3 चीजों का मीनिंग क्या है। और आई होप कि ये तीनों चीजें आपको थोड़ा सा क्लियर हो गई होंगी, और अब जब आप आगे बढ़ोगे और तीनों चीजें आपके दिमाग में है तो फिर आप आगे ढंग से बढ़ पाओगे। जब भी आप अपने गाइड को देखोगे, नेहा मैडम को देखोगे, अमिता मैडम को देखोगे, प्रियंका को देखोगे, ठीक है ना, तो फिर आपको मन में भावना आनी चाहिए कि मैं हाँ ये लोग हमारी हेल्प करने के लिए हैं, ठीक है ना। ये अगर हमारी कमी बता रहे हैं हमको कि भाई ये आपकी कमी है, तो इसका मतलब कि वो हमारी चाय को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। और जो भी आपको सजेशंस दें, जो भी आपको गाइडेंस करें, उसके हिसाब से अपने काम को आप आगे बढ़ाइएगा, ठीक है ना। बिकॉज यू आर इन्फेंट इन द पर्टिकुलर रिसर्च बट दे हैव ऑलरेडी डन देयर रिसर्च, ठीक है। वो आपसे कम से कम जैसे होता है माँ बोलती है बच्चे से कि बेटा माँ चाहे तू कितना बड़ा हो जाए मैं तेरे से 9 महीना बड़ी रहूंगी, ऐसे ही जो आपका रिसर्च गाइड है, ठीक है ना, वो आपसे बहुत कुछ ज्यादा जानता है। माना कि कुछ चीजों में शायद आप ज्यादा जानते होंगे, कई बार होता है ऐसा, हमारे साथ भी होता है कि भाई ब्लॉकचेन के ऊपर मिनल ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, तो ब्लॉकचेन पे जितना मिनल को पता होगा शायद मुझे कुछ बातें नहीं पता होगी, बट जो रिसर्च के बारे में मुझे पता होगा ना वो शायद मिनल को नहीं पता है। तो जो आपकी नॉलेज और जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको मिला के कॉम्बिनेशन बनेगा और उससे आपकी थीसिस क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। सो विद दैट, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। टाइम आज थोड़ा कम था इसलिए मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बताई है, और also सर on बट topics also. Yeah, please. Now you can ask something. सर बताइए। आज के लेक्चर के बाद थोड़ा इतना कॉन्फिडेंट आया है कि हाँ इजली हो जाएगी, लाइक नहीं तो अभी तक थोड़ा इतना डर लग रहा था, पर आपने सीरियसली काफी फेयर निकाल दिया। आपके लेक्चर से काफी बूस्ट अप हुई मैं। थैंक यू चलो सो बढ़िया, मच सर। थैंक यू सो मच। Yes, और sir, कोई it was सवाल very आपका true. हो? Thank you so much for guiding us and enlightening us about the PhD, how the work goes, and whole the process about PhD. Thank you so much, and thank you for being one of our guides. I am really, really happy for you. Like you are our guide, and you're going to be with us for the coming 3 years and 4 years. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Fine. Thank you so much, sir, for such a encouraging. Our session was there with you, and sir, Thank you. Thank you. I like that the guide one you given us some lecture on that, like 7 points are there. So that one I'm thinking like we should focus on that point. That is the main in the coming 3 years, 4 years. On that, if we will focus, we will definitely will do something great. ओके फाइन फाइन। यू नो अभी एक जो बात करके बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, आउट ऑफ द 7 जिसको हम मेन गाइड बोल रहे हैं वो क्या है, वो 4th नंबर पे आते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो 1/7 की रिसर्च के अंदर, यानी कि जो 80% आपकी रिसर्च है वो तो आपके हाथ में। और हम क्या करते रहते हैं, आप जब पूछोगे ना सीनियर्स को किसी को, वो गाइड को ब्लेम कर रहे होते हैं हमेशा। तो जिसको आप ब्लेम कर रहे हो उसका तो कंट्रीब्यूशन 20% ही था। तो अगर वो खराब भी है, मान लो कि गाइड आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, गाइड आपसे बात नहीं करता, गाइड आपको कोऑपरेट नहीं करता, तो ठीक है 20% कम सही, लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 80%? वो तो आपके हाथ में था ना। आपकी नॉलेज आपके हाथ में थी, लिटरेचर आपके हाथ में था, कॉन्फ्रेंस आपके हाथ में थी, फैमिली आपके हाथ में थी, कलीग्स आपके हाथ में थे, ठीक है ना। और उसके बाद में लास्ट में क्या बताया मैंने आप लोगों को, जो एग्जामिनर्स है चलो वो आपके हाथ में नहीं है, एग्जामिनर्स तो बाहर से आएंगे, लेकिन उनको इंप्रेस करना आपके हाथ में। जब 80% रिसर्च वर्क आपके हाथ में है तो आप कैसे कर सकते हो गाइड ने हमको कोऑपरेट नहीं किया, ठीक है ना। ये बातें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि हमको पता है, हम पिछले 12 साल से ये काम कर रहे हैं रिसर्च का, तो लोग बाद में जाकर के परेशान होते रहते हैं। तो अगर आपने ये आज ही मान लिया कि मेरा ये, लेकिन वो 20% जो है ना वो कम नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि वो 20% भी ये मान लीजिए कि वो जो आपको राय देंगे या वो जो सजेशंस देंगे वो शायद आपके 80% काम को इम्प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि मान लो अगर मम्मी ने ये बोल दिया कि बेटा इसमें इलायची और डाल दे, फिर देख चाय का क्या मजा आएगा, तो इसका मतलब वो मम्मी ने आपकी चाय में 4 चांद लगा दी, चाय आप खुद बना के लाए थे। इलायची डालने से अदरक डालने से आपको, तो वो इलायची अदरक के बारे में आपको एक आइडिया बताएगा जिसको आप 20% बोल रहे हो, ठीक है। सो ओके, विद दैट लेट अस गो टू टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच सर। मीटिंग। Thank you so much, नमस्कार। sir. हाँ सर, प्लीज आप आते रहिएगा और हमें ऐसे ही बूस्ट अप करते रहिएगा। बिल्कुल आते रहेंगे, अभी 3 साल हम आपके बिल्कुल साथ हैं। जी सर, Really very happy थैंक यू to have you. सर। Please. थैंक यू सो मच। That's it.